Welcome friends, this is Asif present before you to learn and understand logical connective. This is the subtopic of mathematical logic first chapter class 12 mathematics and statistics. So friends, without further delay let's take started. Now here the first point is logical connectives, and this is also known as the logical operator or sentential connective or sentential operator. Okay, these are the same name. Now what about the logical connectives? Actually friends, we have already learned and familiar with the connectives, logical connectives, okay, in the English book or the English grammar. Okay, like you have already familiar, like this is not, and, or, if, then, if and only if. Okay, these are all the logical connectives. Okay, now let us see first example. Suppose here, have a look. Sneha is a fight and unhappy. So here and is the word which is which connects these two. This means Sneha is fight and unhappy. Okay, this is and is the logical connective. This is the connect. This connects these two sentence. Okay, these two. Now second example, if it rains heavily, then the school will be closed. Here if is the one word and another word is then. From this it rains heavily, here is the one sentence, and another the school will be closed. So these two sentences are connected with the help of if and then. So if, then are the another logical connectives. Okay, now see the definition. The word or the group of words. The word means like and, not, or. These are the words, or the group word means if and then. These are the combination of two words, that is called the group words. Okay, now the words or group of words such as or, if, then, these are the group of words. If, if, this is also known as if and only if. If को if and only if भी कहा जाता है. Can be used to join or connect two or more simple sentences. Okay, so this connecting words are known as logical connectives. As we can see the example, if it rains heavily, then the school will be closed. Okay, these two sentences are connected with the help of if and then. Okay, so this if and then are the logical connectives. And because here some note points. Not is the, here have a look. Not is a logical connectives for a single statement. Okay, now see the main points. Compound statements. Friend, here the compound statements. Compound means there is a combination of two statements. Okay, in between them there is a connective, and the connectives that we are going to study. Now here have a look. Compound, I hope you will understand. Okay, now see the next is truth value of a compound statement. Actually friends, now we first of all we have seen the compound statements. Compound statements mix with the help of two sub statements and their logical connectives. That means depending on the truth value of the compound statements, the truth value of compound statements depends on the truth value of sub statement. इसको जो दो सब स्टेटमेंट है उस पर एंड देयर कनेक्टिव्स पे भी डिपेंड करता है. ओके, एंड देयर कनेक्टिव्स यूज्ड. ओके, जो कनेक्टिव उसमें यूज किए गए हैं उस पर वो डिपेंड करता है. नाउ नेक्स्ट फ्रेंड्स, नाउ हियर हैव ए लुक. देयर इज अ टेबल्स ऑफ logical connectives here. The okay, now see the serial number 1 2 3. Here the one and is also the logical connective. It connects the two sentences or the two statement. The symbol of and is just the reverse of v, and this is called the conjunction. इसको क्या पढ़ते हैं? conjunction. Here the second or. This is looks like a v, the symbol, and this is the name of this junction. Okay, now third is not. इसको कहते हैं negation. Okay, now fourth is if then. इसको कहते हैं वन एरो या इस तरह से इम्प्लाइड देते हैं. इसको कहते हैं कंडीशनल और इम्प्लीकेशन. ओके,
नाउ द 5 नंबर इफ़ एंड ओनली इफ़, इसी को दूसरे तरीके से लिखते हैं आई डबल एफ इफ़, ओके। इसको कहते हैं बाई कंडीशनल, इस तरह सिंबल इसको लिखते हैं, implied that this is by conditional or double implication, okay. Now let us see, learn one by one. First is talking about the conjunction, okay. Here the conjunction, the some definition. Conjunction, because we are going to study the compound statement, okay. We are talking about we are talking this conjunction in the compound statement. And suppose if P and Q are two simple statements, P और Q क्या है, दो सिंपल स्टेटमेंट हो, कनेक्टेड बाय द वर्ड, किसी भी वर्ड के द्वारा कनेक्टिव के साथ कनेक्ट हो, वर्ड लाइक द एंड, देन द रिजल्टिंग कंपाउंड स्टेटमेंट इज कॉल्ड द कंजंक्शन ऑफ P and Q, that is written in the symbolic form like P कंजंक्शन Q, दिस इज द सिंबल ऑफ कंजंक्शन, इसको एंड लिखते हैं, ठीक है। जहाँ एंड है वेयर देर इज एंड देर इज दिस सिंबल, ओके। नो इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, लेट सपोज मान लेते हैं P स्क्वायर रूट 2 इज अ रेशनल नंबर, इसे P से मैंने डिनोट किया, ठीक है। इस स्टेटमेंट को मैंने P से डिनोट किया, और दूसरे स्टेटमेंट 4 + 3i को क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको मैंने Q से डिनोट किया, ओके। नो अगर हमको लिखना है एक सिंबॉलिक फॉर्म में, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि स्क्वायर रूट 2 इज़ अ रेशनल नंबर है P, एंड Q इज स्क्वायर 4 + 3 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, देन द कंजंक्शन ऑफ दिस टू एबव स्टेटमेंट्स इज P conjunction Q, that is square root 2 is a rational number, and because this stands for and, this means and, this reverse जो उल्टा V लिखा है इसका मतलब हो रहा and, ओके। एंड 4 + 3i इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। इसी तरह से आगे सोल्व करेंगे। नाउ सी द नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखते हैं इसके एंड कंजक्शन, ट्रूथ टेबल ऑफ कंजक्शन, इस कंजक्शन का ट्रूथ टेबल, एंड इंडिविजुअली हम लोग सबके ट्रूथ टेबल तो पढ़ेंगे वन बाय वन। सबसे पहले देखते हैं ट्रूथ टेबल ऑफ कंजक्शन, बिकॉज द कंपाउंड स्टेटमेंट के अंदर दो सिंपल स्टेटमेंट होंगे, एक P और Q, ठीक है। P और Q के बीच दो कनेक्ट करने वाले कनेक्टिव से होगा, उसको यहाँ पर एंड लिखेंगे, टॉकिंग अबाउट द कंजक्शन की बात कर रहे हैं, एंड, ठीक है। नाउ आप देखते हैं यहाँ पे देखते हैं, सपोज P and Q आर दो सिंपल स्टेटमेंट्स है, दिस इज द रिजल्टेंट वैल्यू है। नाउ है सपोज द फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, P इज ट्रू, ओके। Now P is true and Q is true, okay. So true is equal to true, simple. That means को कह सकते हैं true and true is equal to true. Here true and false, P is true if Q is false, that means इसका रिजल्टेंट जो वैल्यू आएगा, जो रिजल्ट आएगा वो फॉल्स देगा, ओके। Here यहाँ पे देख सकते हैं अगर फर्स्ट फॉल्स हो फिर दूसरा वाला स्टेटमेंट ट्रू हो तब भी क्या होगा, फॉल्स होगा। दोनों फॉल्स तो उमूमन फॉल्स ही होगा, ऑब्वियसली फॉल्स होगा। अब यहाँ पे देखिए सिर्फ एक केस में ट्रू है, फर्स्ट स्टेटमेंट एंड द सेकंड स्टेटमेंट आर बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, देन द रिजल्टिंग वैल्यू कंसिक्वेंट वैल्यू इज ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। Now here the one point is remarkable points यहाँ पे नोट, conjunction is true if both sub statements are true, then the conjunction is true, otherwise it is false, every other case में क्या है, false है। Now other second point is other words like the but, beauty but, yet, though, still, moreover, you, ये सब सारे यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ एंड के जगह भी इस स्टेटमेंट को, कि ये सब सारे वर्ड्स भी दो स्टेटमेंट को जोड़ने का काम करते हैं, एंड के जगह इनका यूज़ करेंगे बट, येट, तो, स्टिल, मोरेवर, यूज टू ज्वाइन टू सिंपल स्टेटमेंट्स इंस्टेड ऑफ एंड, ओके फ्रेंड्स। नाउ सी द नेक्स्ट पॉइंट हियर, हैव अ लुक, दिस इज about the conjunction, we're talking about the disjunction. Disjunction is just vice versa of the symbol of vice versa, okay. It looks like a V. Now same definition as conjunction, if P and Q are two simple statements connected by the word or, then the resulting compound statement P or Q, over there P and Q था, लेकिन यहाँ पे P और Q is the disjunction of P and Q, which is written by P disjunction Q, looks like a V, P disjunction Q. Now see here the one point is actually हम लोग यहाँ पे और का दो
केस में यूज़ किया जाता है। ओके, और द वर्ड और इज़ यूज्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज इन टू डिस्टिंक्ट सेंसेस। दो अलग अलग जगहों पे इसको वहाँ पे अलग अलग सेंस में यूज़ करेंगे। फर्स्ट है एक्सक्लूसिव, सेकंड है इंक्लूसिव। ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड वन बाय वन। फर्स्ट सपोज थ्रोइंग अ कॉइन विल गेट अ हेड और टेल। यहाँ पर एक एग्जांपल से लेगा, अगर किसी एक कॉइन को अगर थ्रो करेंगे तो एक कॉइन को थ्रो करने पे एक ही चीज़, या तो कॉइन या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, दोनों तो नहीं आ सकता एट ए टाइम। सेकंड एग्जांपल देखिए, द अमाउंट शुड बी पेड बाय चेक और बाय डिमांड ड्राफ्ट। अगर आपको अमाउंट अगर पेड करना हो तो किसी एक, यानी इस दोनों केस में से एट ए टाइम दोनों नहीं हो सकता, एक हो सकता है, या तो चेक के द्वारा आप अमाउंट को पे कीजिए या फिर डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा। ओके, दिस टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल्स indicate this is the exclusive form, okay, for you, for or. Okay, now let us see the another example. Suppose graduate or employee persons are eligible to apply for this post. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर अगर कोई बंदा, कोई आदमी अगर ग्रेजुएट हो, एम्प्लॉय भी हो सकता है, कहीं काम भी कर सकता है, ग्रेजुएट भी है, काम भी कर सकता है, तब भी इस फॉर्म के लिए वो एलिजिबल है। बट इस केस में अगर किसी भी कॉइन को आप उछालते हैं तो सिर्फ या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, दोनों नहीं आ सकता। लेकिन यहाँ पे एक बंदा दोनों भी हो सकता, या अगर दोनों ना हो, एम्प्लॉय नहीं हो, तो सिर्फ अगर ग्रेजुएट रहेगा तब भी इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। ओके, नाउ अनदर एग्जांपल देखिए, द चाइल्ड शुड बी अकम्पेन्ड बाय फादर और मदर। बच्चे फादर और मदर के द्वारा ही, यहाँ पे दोनों आ सकता है एट ए टाइम, या वन भी आ सकता है, लेकिन दोनों भी आ सकता है। तो इस केस में यहाँ पे दोनों इंक्लूड हो रहे हैं। बट ये फर्स्ट एग्जांपल और सेकंड एग्जांपल में, फर्स्ट केस में सिर्फ एनीथिंग, ओके, एक ही चीज़ यहाँ पे काम में आ रहा है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं नोट में, इन द नोट में यहाँ पे देख सकते हैं, इन द एबव स्टेटमेंट्स और इज यूज्ड इन द सेंस दैट फर्स्ट और सेकंड और बोथ द पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट। Okay, hence it is called inclusive sense of or. But in the maths or is used in inclusive, ज़्यादातर inclusive sense को ही यूज़ करेंगे। यहाँ फिर से देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट जो एग्जांपल है, throwing a coin will get a head or tail, और the amount should be paid by check or by demand draft. Here these are the examples in exclusive for. Okay, यहाँ इन दोनों केसों में से सिर्फ एक चीज़, यानी कॉइन में एक ही, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। लेकिन इस एग्जांपल्स में ग्रेजुएट और एम्प्लॉय पर्सन्स आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट इन द एबव स्टेटमेंट्स और इज यूज्ड इन द सेंस दैट फर्स्ट और सेकंड और बोथ द पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट, दोनों पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट। बट इस केस में अगर कॉइन को आप उछालेंगे तो एक ही पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट, या तो हेड होगी या फिर टेल होगी। लेकिन इस केस में दोनों आ रही है, तो ऐसे जिसमें दोनों आ जाए, डैट मीन्स वन और दोनों भी आ जाए, तो उसको कहते हैं इंक्लूसिव सेंस में कहेंगे। ओके, नाउ समझ में आ गया होगा। नाउ सी द नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, इसकी ट्रूथ वैल्यू ऑफ डिसजंक्शन। ट्रूथ टेबल मीन्स इसके ट्रूथ टेबल देखिए, हेयर इज द पी इज द स्टेटमेंट्स एंड अनदर स्टेटमेंट इज क्यू। ओके, नाउ हेयर पी क्यू and the resulting value is p disjunction q. Here the suppose अगर फर्स्ट स्टेटमेंट p अगर ट्रू है, सेकंड भी ट्रू है, तो ऑलवेज ट्रू, फर्स्ट ट्रू, सेकंड फॉल्स, ट्रू, फर्स्ट फॉल्स, सेकंड ट्रू, ट्रू, बोथ द फॉल्स मीन्स फॉल्स। यहाँ पे सिर्फ एक केस में फॉल्स था, और कंजक्शन में जब दोनों ट्रू था तो एक जगह ट्रू था, बाकी अदर में सब फॉल्स था। लेकिन यहाँ पे जस्ट रिवर्स उल्टा है, ठीक है। नाउ हेयर हैव अ लुक, यहाँ पे एक नोट पॉइंट्स, यहाँ डिसजंक्शंस इज फॉल्स इफ बोथ द सब स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। हैव अ लुक, disjunctions is false if the both the statements are false, otherwise true. Disjunctions of two sub statements are like as a union of the two set, ये यूनियन की तरह काम कर रहा है। ओके, सेट थ्योरी में आपने यूनियन पढ़े होंगे, यूनियन इंटरजेक्शन। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे देखिए, रोहित इज ए स्मार्ट और ही इज हेल्दी। इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, रोहित इज ए स्मार्ट और हेल्दी। नाउ फ्रेंड्स, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस हैं, जो अभी सोल्व करेंगे। ओके, वेरी सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, सिर्फ थोड़ी सी कंसेप्ट क्लियर करनी होती है। ओके, नाउ सी
क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1 एक्सप्रेस द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स इन सिंबॉलिक फॉर्म, सिर्फ सिंबॉलिक फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, ठीक है। हेयर यहाँ पे ई इज़ अ वोवेल और 2 + 3 = 5। ओके, यहाँ पे सिर्फ ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, इसको आपको या तो पी, चूँकि स्टेटमेंट को मैंने स्मॉल लेटर से PQR से डिनोट कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे इसको पी मान लेते हैं। सपोज पी इज़ ए वोवेल, VOWEL, ओके, ये वोवेल है। सेकंड क्यू मान लेते हैं 2 + 3 = 5। ओके, अब यहाँ पे इसको सिंबॉलिक फॉर्म देना है, डैट मीन्स पी, क्योंकि यहाँ पे और है, और के सिंबल क्या होता है, यस बी के जैसा होता है। ओके, पी डिसजंक्शन क्यू इज अ सिंबॉलिक, बस ये आंसर हो गया इसका। ओके, उसी तरीके से नेक्स्ट देख सकते हैं सेकंड नंबर, मैंगो इज़ अ फ्रूट बट पोटैटो इज़ ए वेजिटेबल। लेकिन यहाँ पे बट अब याद करेंगे तो एंड की जगह पे बट यूज़ कर सकते हैं, येट यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो इसका मतलब है इसका सिंबल क्या आएगा, यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं, सपोज दिस इज़ पी, मैंगो इज़ ए फ्रूट, ये पी, और यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए ये क्यू है। ओके, क्यू, हियर इज़ अ पोटैटो इज़ अ वेजिटेबल। अब इसको सिंबॉलिक फॉर्म में देना है पी कंजंक्शन क्यू, क्योंकि यहाँ पे एंड का काम कर रहा, बट मीन्स एंड, क्योंकि इंस्टेड ऑफ एंड बट यूज़ किया जा सकता है। ओके, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, इसको इसे पी कंजंक्शन क्यू लिखेंगे। ओके, नाउ सी, यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर सब क्वेश्चन थर्ड, मिल्क इज़ वाइट और ग्रास इज़ ग्रीन। यहाँ पे और मीन्स डिसजंक्शन। ओके, डिसजंक्शन, यहाँ पे पी को मान लीजिए, पी सपोज के लिए मिल्क इज़ वाइट एंड क्यू मान लीजिए ग्रास इज़ ग्रीन, तो इसको सिंबॉलिक फॉर्म में सिंपल लिखेंगे पी डिसजंक्शन क्यू, सिंपल आंसर हो गया। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 4, 5 आप सोल्व कर सकते हैं। सेकंड नंबर देखिए क्वेश्चंस, राइट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, सिर्फ ट्रूथ वैल्यू लिखना है। यहाँ पर अर्थ इज़ अ प्लानट फर्स्ट एंड मून इज़ अ स्टार। ओके, यहाँ पे देखिए अर्थ इज़ अ प्लानट, ये बिल्कुल सच है, पी, इसको पी मान लीजिए, और इसको क्यों, मून इज़ अ स्टार। ओके, यहाँ पर देखिए पी, यहाँ पर अर्थ प्लानट है लेकिन मून इज़ अ स्टार, स्टार ने, मून एक क्या है, एक सैटेलाइट मतलब उपग्रह है, ठीक है। तो स्टार क्यों है, जिसके पास रोशनी होती है, जैसे द सन इज़ द स्टार। ओके, तो यहाँ पर ये पी जो है, पी जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। ओके, क्योंकि अर्थ इज़ अ प्लानट करेक्ट है, बट यहाँ पे जो मून है स्टार नहीं, यहाँ पे ये फॉल्स है। तो ट्रू, फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ ट्रू और सेकंड इज़ फॉल्स है। तो यहाँ पे कनेक्टिव क्या एंड लगा हुआ है, ठीक है, एंड को सिंबल में क्या लिख सकते हैं, उल्टा वी करके लिख सकते हैं। एंड एक ही केस में ट्रू होता है जब फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो। यहाँ अगर एक भी ट्रू और दूसरा फॉल्स हुआ तो यहाँ पे क्या होता है, रिजल्ट इसकी फॉल्स हो जाएगी। डैट मीन्स पे इज़ ट्रू एंड क्यू इज़ फॉल्स, इसलिए द रिजल्टेंट वैल्यू क्या होगा, इसका फॉल्स होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड नंबर देखते हैं 16। ओके फ्रेंड, 16 is an even number, okay, and 8 is a perfect square। यहाँ पे देखते हैं 16 को मान लीजिए, यहाँ पे 16 इवन नंबर, इसको मान लेते हैं p, 16 is an even number एंड क्यों यहाँ पे मान लेते हैं 8 is a perfect number, 8 is a perfect number। अब यहाँ पे देखिए 16 इवन नंबर, यस ये तो इवन है तो इसलिए p इज ट्रू हो गया। अब देखिए 8 इज़ अ परफेक्ट नंबर, यानी किसी भी ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर, किसी भी ये नंबर का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। ये क्या हो गया, क्यू इज़ फॉल्स। तो फर्स्ट ट्रू है और सेकंड क्या फॉल्स है, और यहाँ पे क्या है, एक कनेक्टिव एंड लगा हुआ है। एंड के केस में जानते हैं ट्रू कब होगा, जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। तो ये भी क्या हो गया, एक फॉल्स अनदर फॉल्स, एक ट्रू अनदर फॉल्स है, मीन्स रिजल्टेंट वैल्यू क्या होगा, इसका फॉल्स होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट आप देख सकते हैं थर्ड नंबर पे, A quadratic equation has 2 distinct roots और 6 has 3 prime factors। अब इसको देखते हैं, अब यहाँ से यहाँ तक को मान लेते हैं, एक क्या है, ये P है। A quadratic equation has 2 distinct root, और हम लोग जानते हैं quadratic equation के distinct root है, देख लेते हैं। और क्यों देखिए 6 has 3 prime factors। ओके, 6 has 3 prime factors। Now see friends, question number third, a quadratic equation has 2 distinct roots, यानी suppose P is a quadratic equation has 2 distinct roots and Q को मान सकते हैं 6 has 3 prime factors। अब इन दोनों के बारे में देख रहे हैं ये ट्रू है या फॉल्स होगा कि नहीं, इसके बारे में चेक करना। क्वाड्रेटिक के बारे में सोचिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कह रहा 2 डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, यानी अलग अलग रूट्स है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सेम रूट भी तो आता है, इस केस में सेम रूट भी आ सकता है, बहुत सारे केस में सेम रूट आ सकता है, x - 2 × x - 2
इज इक्वल टू अगर 0 कर दे तो इस केस में x की वैल्यू 2 और 2 आ सकती है। तो इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिस्टिंक्ट रूट भी हो सकती है और सेम रूट भी हो सकती है। यहाँ पे सिर्फ कह रहा है डिस्टिंक्ट रूट, तो इसका मतलब ये p क्या हो जाएगा, फॉल्स, p इज़ फॉल्स। ओके, हेयर p इज़ फॉल्स। और 6 क्यू के बारे में सोचते हैं, 6 हैज़ 3 प्राइम फैक्टर्स। तो 6 का फैक्टर निकाल के 6 कुड बी रिटेन एज 1 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 कैन बी रिटेन एज 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब यहाँ पे 6 के कितने फैक्टर हो गए, 1 2 और ये 3, 1 2 3 और ये 6 के कितने फैक्टर हो गए, 1 भी फैक्टर हो गया, 6 भी फैक्टर हो गया, 2 भी फैक्टर हो गया और 3 भी। क्यों, फैक्टर क्या होता है, उस नंबर को डिवाइड करता है। 1 कैन डिवाइड 6, 6 कैन डिवाइड 6, 2 कैन डिवाइड 6, 3 कैन डिवाइड 6। 1 2 3 एंड 6, इसके कितने फैक्टर हो गए, 4 फैक्टर। यहाँ पे कह रहा है 6 हैज़ 3 प्राइम फैक्टर, तो इसके 3 प्राइम फैक्टर। तो यहाँ पे देखिए 1 2 और 3, यहाँ पे टोटल 4 फैक्टर हुए हैं, लेकिन प्राइम फैक्टर कितने हैं, प्राइम फैक्टर सिर्फ 2 है और ये 3 है। प्राइम नंबर में तो वैसे नंबर जो खुद और 1 से डिवाइड होता हो, तो 2 और 3 ये प्राइम नंबर। यहाँ पे प्राइम फैक्टर सिर्फ 2 है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है 3, तो डैट मीन्स क्यू भी क्या है, एक फॉल्स है, इसलिए फॉल्स हो गया। तो यहाँ पे p फॉल्स है, सॉरी p क्या है, फॉल्स है और q भी फॉल्स है। तो फॉल्स डिसजंक्शन फॉल्स इज इक्वल टू आंसर क्या होगा, फॉल्स। आप पढ़ेंगे डिसजंक्शन में एक ही केस में फॉल्स होता है, बोथ द स्टेटमेंट्स और फॉल्स मीन्स द कंसिक्वेंट वैल्यू इज फॉल्स। नाउ एक लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द हिमालयाज आर द हाईएस्ट माउंटेन बट यूज़ करते हैं एंड के लिए, याद रखिए, बट दे आर पार्ट ऑफ इंडिया इन द नॉर्थ ईस्ट। इसको आप सोच सकते हैं, इसको बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसको p कंसिडर कर लेते हैं, p आप इसे। नो फ्रेंड्स, देख सकते हैं लास्ट क्वेश्चन, p इसको मान लेते हैं, द हिमालयाज आर द हाईएस्ट। अब बताइए हिमालयस के हाईएस्ट, बिल्कुल है, हाईएस्ट माउंटेन है, करेक्ट है। यहाँ पे p क्या है, ट्रू है। बट दे आर पार्ट ऑफ द इंडिया इन द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट का भी पार्ट है क्यू, तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू है, p इज़ ट्रू एंड q इज़ ट्रू। जब p और q दोनों ट्रू हैं और ये क्या बट लगा हुआ, मीन्स ये कंजंक्शन है, मीन्स एंड वाला कनेक्टिव है। तो जब दोनों ट्रू हैं तो ये इसका आंसर क्या होगा, ट्रू। इसका आंसर क्या होगा, इसको आप इस तरह से लिखेंगे, ट्रू कंजंक्शन, सॉरी कंजंक्शन को आप लिखते हैं उल्टा v ना, इस तरह से लिखते हैं, ट्रू कंजंक्शन ट्रू इज इक्वल टू ट्रू। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। ओके, आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट्स हो, कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। ओके, हैव ए नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।